Morning everyone, I am Asmita Rakshit from class 10B and today on this auspicious occasion of the birth anniversary of Munshi Premchand, I would like to share my thoughts on the stalwart from the realm of Hindi literature. Munshi Premchand was one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent. He was widely acclaimed as the Upanyas Samrat for his vast range and predominantly featured realism. Born as Dhanpat Rai Srivastava, Munshi was an honorary prefix. He began writing under the pen name Nawab Rai. The great literary figure was born on 31st of July 1880 and left for his heavenly abode on 8th October 1936. His works include more than a dozen novels and around 300 short stories, several essays, and translations of a number of texts from the Western world. His works, like Godan, Nirmala, Karmabhumi, describe the problems of the poor and the urban middle class. His works depict a rationalistic outlook which depicts religious values as something which allows hypocrites to exploit the weak. He used literature as a purpose for arousing public awareness about national and social views. He was greatly influenced by Mahatma Gandhi's non-cooperation movement and followed Swami Vivekananda's teachings. Munshi Premchand's contribution to Hindi literature can never be overstated. As David Rubin wrote, Premchand comes from a distinct genre of short stories and novel as well. Thank you. মুন্সি প্রেমচন্দ হিন্দি কথা সাহিত্যে এখনো পর্যন্ত একজন গল্পকার উপন্যাসিক হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। তার ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল, কিন্তু লেখনী বলিষ্ঠ। কথাশিল্পী হিসাবে প্রেমচন্দ তার উপন্যাস এবং গল্পগুলিতে নির্বিকশিত সমাজের সকল অন্যায়, অসুস্থতা এবং দরিদ্র ও দুর্বল মানুষদের ওপর তাদের শোষণের কথা একদম পরিষ্কারভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করে তুলেছেন। মুন্সি প্রেমচন্দের জন্ম হয়েছিল এক অতি সাধারণ পরিবারে 1880 সালের 31শে জুলাই। তার সাহিত্য জীবনের সূচনা কিশোর বয়স থেকেই। মানুষের বাস্তব জীবনে সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই ফুটে উঠেছে তার লেখার প্রতি ছন্দে ছন্দে। 1907 সালে এক বাল্য বিধবার জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা প্রেমা গল্পটি রচনা করেছিলেন তিনি। তার কতগুলি স্মরণযোগ্য উপন্যাস হল গোদান, কয়াকল্প ইত্যাদি। মুন্সি প্রেমচন্দ হিন্দি ছোট গল্পকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডি অতিক্রম করে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায়। মুন্সি প্রেমচন্দ 1936 সালে 8ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। পরিচিত বহু মানুষের অহংকার, অর্থের গর্ব তাকে ব্যথিত করল। সে দেখেছিল মানুষের লোভ লালসার প্রসার, তাই অন্তিম জীবনের পর্যায়ে তার হয়েছিল নব চেতনার উত্তরণ। তাই আজকের দিনে প্রেমচন্দ জয়ন্তীতে আমরা তাকে মনে করে থাকি। ধন্যবাদ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद ने हिंदी को एक सजीव, सरल और सशक्त गद्य शैली प्रदान की है।
साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। उन्होंने अपनी विचारधारा को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। सेवा सदन के दौर में वे यथार्थवादी समस्याओं पर काम तो कर रहे थे, लेकिन उसका एक आदर्श समाधान भी निकाल रहे थे। वे मानवतावादी भी थे और मार्क्सवादी भी। निश्चित रूप से उन्हें हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक कहे जा सकते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। अंत में उनकी मृत्यु 1936 में हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में ही उपन्यासकार सम्राट की उपाधि मिल गई थी। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त है। प्रेमचंद वह है जिन्होंने उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने वैचारिक धरातल तथा सुदृढ़ भावभूमि को उपन्यासों की रचना का आधार बनाया। अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में व्यापक कुरीतियां, अंधविश्वास, किसान मजदूरों का शोषण, अंग्रेजों के दुर्भावनापूर्ण नीतियों का विरोध, महाजन व्यवस्था, व्यवहारिक ज्ञान तथा नैतिक विचारों अध्ययन करके उसका मजबूत पक्ष पाठकों के समझ रखा है। दी आर्यन स्कूल के विद्यार्थीगण इस बार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख तथा अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप दिया था तथा अलगू जब भी कभी बाहर जाते तो वे जुम्मन पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ देते थे। उनमें ना खाने पीने का व्यवहार था, ना ही धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मासी भी थी, जिनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर उनकी मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्रिका की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब लजीज पदार्थ खिलाए गए, हलवे सिके गए, पुलाव की वर्षा हुई, परंतु रजिस्ट्री की मोहर ने इन सारी खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ साथ कड़वी बातों के तीखे सालन भी देने लगी थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित ही ऐसा सुनना पड़ता था। तहरी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती गले से, हैं? अरे जितना रुपए अब तक इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक पूरे गांव मोल ले ले। कुछ दिन तो खाला जान ने सुना तथा सहा, पर जब ज्यादा सहा न गया तब जाकर जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने हाथ आई इतनी बड़ी दौलत को इतनी आसानी से खाला जान को लौटाना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा और अंत में एक दिन खाला जान ने जुम्मन से कहा, बेटा, मेरा अब तुम्हारे साथ निर्वाह ना हो पाएगा। तुम मुझे महीने के कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूं। मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए, बिकी नहीं। क्यों बिना बात बड़बड़ा रही हो? जब जुम्मन ने ये बात कही तो वो खाला जान के दिल को चुभ गई, वह बिगड़ गई। अचानक उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाता हुआ देखकर मन ही मन हंसता है, और बोले, आ गई ना अपनी औकात पर। हाँ, करो पंचायत, जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए। मुझे भी ये दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह न था। आसपास के गांव में भला ऐसा कौन था जो कि जुम्मन की ऋणियों की लिस्ट में न था। इसके बाद कई दिन बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए गांवों में दौड़ती रहती थी। कमर झुक के कमान की तरह हो गई थी।
एक पग भी चलना मुश्किल था, मगर एक बात आन पड़ी थी जिसका निर्णय उन्हें लेना ज़रूरी था। कोई विरला ही ऐसा बड़ा आदमी हो जिसके सामने उस बुढ़िया ने दुख के आंसू न रोए हों। किसी ने हाँ कहा तो किसी ने हूँ करके टाल दिया। अरे खाला जनाब, सब खैरियत तो है? बेटा, तुम दंपत के लिए मेरी पंचायत में आ जाना। मैं नहीं आ पाऊंगा। कौन जाएगा उस जुम्मन शेख से दुश्मनी करने? आप तो जानते हैं कि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी कितनी सहायता की थी, और मैं उनसे गद्दारी नहीं कर सकता। मैं नहीं आ पाऊंगा। मगर उस अन्याय से बुढ़िया को बचाने की हिम्मत किसी में न थी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक कर बोली, बेटा, तुम भी दंपत के लिए मेरी पंचायत में आ जाना। मुझे बुलाकर क्या करोगे खाला? गांव के अधिक आदमी तो आएंगे। अपने बेटी तो सबके आगे रोवाई, आगे ना आगे कर दो, उसको दिया। देखो खाला, यूँ आने को तो मैं आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। वही बेटा, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ना है। बेटा, क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? अलगू इस सवाल का उत्तर ना दे सका। उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। खाला जान के जाने के बाद अलगू चौधरी की पत्नी ने उनसे कहा कि ना 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 ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी और जुम्मन भाई साहब की दोस्ती काफ़ी गहरी और पुरानी है। खामखा आपकी दोस्ती में दरार आ जाएंगी, और आपको तो उनके पारिवारिक मामलों में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बेकार में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आप मेरी माने तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संध्या समय एक पेड़ के नीचे आखिरकार पंचायत बैठ ही गई। वहाँ जुम्मन शेख पहले से ही फर्श पर बैठा था। उन्होंने पान, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठा हुआ था। पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी। ये सब बात तो आप सब जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे दाद, ध्यात, रोटी, कपड़ा, मकान सब देना कबूल किया था। साल भर तो मैं रो धोकर जैसे तैसे काट लिया, पर दिन रात पूरना मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे ये कचेरी दरबारी नहीं होगा। तुम पंचों के सिवाय मैं अपना दुख राती से सुनाऊं किसे? तुम लोग मुझे जो राह दिखाओगे मैं उस राह पर चलूंगी। हाँ, यदि मुझ में कोई ऐब दिखे तो मुझे थप्पड़ मारो, और अगर जुम्मन में कुछ भलाई देखे तो समझाओ क्यों एक बेकस की राह लेता है। तत्पश्चात पंचायत जुम्मन शेख से पूछती है कि वो अपना पंच किसे मानते हैं, और इस पे जुम्मन शेख का यह कहना होता है कि खाला जिसे चाहे अपना पंच मान सकती है, उन्हें ऐतराज नहीं होगा। अपनी ओर से अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती हूँ। वो जो न्याय देगा मुझे मान मिलेगा। यह सुनकर जुम्मन शेख बहुत खुश हुए कि अब तो न्याय जुम्मन शेख की ओर ही होगा। परंतु कहा जाता है कि पंच के मुंह से जो न्याय होता है वह स्वयं परमेश्वर यानी ईश्वर के मुंह से होता है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त। जब काम पड़ा तब तुमने हमारी मदद की, हमसे भी कुछ बन पड़ा, तुम्हारे सेवा करते रहे। और इस समय तुम और खाला हमारे निगाह पर बराबर। तुम्हें कुछ पंचों से हर्ज करनी हो तो करो। जुम्मन को ये विश्वास था कि बाजी तो उसी के हाथों में है। अलगू तो ये सारी बातें पंचों के सामने दिखावे के लिए कर रहा है, इसीलिए निश्चिंत होकर बोला, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी,
मैंने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। अब और तो मैं बन रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है? खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। अब जायदाद जितनी है पंचों से तो चुप भी नहीं, उससे इतना मुनाफा तो नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूँ। अलावा इसके बनाना में माहवार खर्च के बारे में कुछ नहीं लिखा था, वरना मैं तो भूल करके भी इस मेले में नहीं पढ़ता। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी पंचों का इख्तियार, उन्हें जो बन पड़े वो करे। खाला ने तुम्हारे नाम क्या क्या किया था? 6 बीघा खेत, एक छोटा सा घर और यही कुछ गहने जेवर। खाला को कपड़े खाने के अलावा भी और कोई शिकायत है? नहीं। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला को माहवा खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला के जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उन्हें महावर खर्च दिया जा सके। बस हमारा यही फैसला है। जुम्मन को महावर खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। यह सुनकर जैसे जुम्मन शेख के सीने पर हथौड़ा चल गया हो, ऐसा तो कभी उसने सोचा ही न था। उस दिन से दोनों दोस्त तलवार और ढाल की तरह मिलने लगे। अलगू चौधरी जब घर जाते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मैंने आपसे 1000 बार कहा था कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। खैर, मैं खुश हूँ कि पंच परमेश्वर ने जो भी निर्णय लिया है वो सटीक है, परंतु उसका अंजाम क्या हुआ? जुम्मन भाई साहब आपसे नाराज हो गए और इस बात को सुनकर आपको काफी ठेस पहुंची, जिसके कारण आपने खाना पीना छोड़ दिया। जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता ना। अगर आप खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा। खा लीजिए आप। संयोगवश अलगू चौधरी ने खेती करने के लिए एक जोड़ी खट्टा कट्टा और तगड़ा बैल खरीद लिया। वह बैलों का जोड़ा पूरे गांव में इतना मशहूर था कि तकरीबन रोज ही लोग उन बैलों के जोड़े को देखने चले आते थे। अचानक एक दिन उन बैलों में से एक की मृत्यु हो गई। अब बस एक ही बैल बच गया था। उसे भी अलगू चौधरी ने शंभू साहू के हाथ उधार में बेच दिया था। शंभू साहू और उनकी पत्नी। अरे वो सुनती हो, कल शहर जाना है। तो मैं क्या करूं? करेगी करना तो मुझे ही है। पड़ोसी गांव के लाला के गुड़ और घी की खेप लाना है, और अब तो हमारा बेल कोई काम करना है। तो तू कहे तो जरा अलगू चौधरी से बात करे, बड़ा गबरू जवान बहन है उसका। वाह, मैं भी तो यही कहने वाली थी ना कि बात करने में क्या बुराई है। शंभू साहू अलगू चौधरी के घर में। चौधरी जी, आपके बैल के असमय मरने का बड़ा अफसोस है हमें। अब एक बैल से तो खेती हो नहीं सकती, तो अगर आप ठीक समझें तो हमारी इक्का गाड़ी के लिए एक बैल चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है। रमुआ, इनको बैल खोलकर दे देना। देखो शंभू, 150 रुपये असारी पुरंती दे देना होगा। मैं व्यापार का बहुत ही पक्का हूँ। हमारी जबान है चौधरी जी, खाली ये भी नहीं जाएगी। शंभू साहू को बैल मिलने के बाद उसने उससे बहुत परिश्रम कराया। वो दिन में उससे 4-5 खेपे लगा लेता था और ना उसे चारा देता था ना उसे पानी। वो बस उसे खटाता रहता था। अब चलो चलना पड़ेगा। इतना काम करने के कारण बैल एक दिन स्वर्ग सिधार गया। बैल यही मर गया। अरे अब आगे इससे मरने का तो बीच रास्ते क्यों मर गया? घर पहुंचकर मरता। अब इतने पीते हुए घी और गुड़ पड़े हैं गाड़ी में, इनका क्या होगा? उस रात थकान के कारण शंभू साहू की आंख वहीं लग जाती है और बदकिस्मती से उनका सारा सामान चोरी हो जाता है। सब सामान का क्या हुआ? हाय, मैं लूट गया, मेरा सब सामान चोरी हो गया, मैं पूरा बर्बाद हो गया। हाय भगवान, मेरा सामान कहीं भी नहीं, मेरा सामान कहाँ गया?
शंभू साहू अपने घर में। अरे भाग्यवान, हम लोग लुट गए। कल रास्ते में ही बेल मर गया, सारा सामान हमारा चोरी हो गया। अब क्या होगा पता नहीं, पूरा बर्बाद हो गया। हम पूरा लुट गए जी, पूरा लुट गए। हाय भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अलगू साहब ने तो ऐसा बीमार बैल दिया कि हम लोगों का जन्म भर का कमाई लूट गया। अलगू चौधरी जब शंभू साहू से बैल की कीमत मांगते तो बातें टालकर वो समय बिताने लग जाता। देखो शंभू साहू, आज हम बैल का पैसा लेकर ही जाएंगे। 1 साल हो गया और चुप ना बैठेंगे। यहाँ पर जन्म भर की कमाई लूट गई, सारा सत्यानाश हो गया। उन्होंने दामों की पड़ी, मुर्दा बैल दिया, ऊपर से दाम मांगने आ रहे हैं। अरे सत्यानाशी बैल देकर आंखों में धूल झोंक कर तुमने गले बांध दिया, दाम मांगने आ रहे हो। चुप रहो शंभू साहू, तुम आए थे मेरे पास बैल लेने, मैं देख समझ के ही बैल दिया था। एक दिन अलगू चौधरी की पत्नी शंभू साहू के घर जाकर बैल की कीमत मांगी तो उल्टे शंभू साहू की पत्नी तो अलगू चौधरी की पत्नी को गालियां देने लगी। कमबख्त ने कैसा बैल दिया जिसके चलते हम पूरा लूट गए। अरे हमारा तो सारा का सारा पैसा लूट के ले गया, कहाँ से दूँ मैं तुम्हें इतने सारे पैसा। व्यापार करते समय रास्ते में माल से भारी बैल गाड़ी ने खींचते खींचते रात भर में ही बैल ने अपना प्राण त्याग दिया। अरे जिसके कारण हमारा सारा धन छोड़ गया। देखो, मैंने जब तुम्हें बैल बेचा था तब वो एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त था। तुम्हारे वहाँ जाते ही उसे क्या हो गया? तुमने उसे इतना काम करवाया, इतना मेहनत करवाया और खाना ढंग से नहीं खिलाया। वो क्या मेरी गलती थी? वो मर नहीं जाएगा तो क्या वो जिंदा रहेगा? देखो, वो सब मैं नहीं जानती। मेरा बैल खड़ा था और मुझे खड़ा पैसा चाहिए, बस बात खत्म। किसका पैसा? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुमको। तुम अपनी बीमार बैल मुझे सौंप दी थी। बुलाओ पंच को, देखते हैं क्या निर्णय होगा। क्यों नहीं दोगी तुम मुझे पैसा? बल्कि पैसा मांगना तो मेरा हक है, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। और इस सब का फैसला तो अब पंच करेगा, क्योंकि पंच को मैं बुलाऊंगी। इस तरह से बात काफी आगे बढ़ गई। लाचार होकर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। फिर से वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी खाला जान ने पंचायत बुलाई थी। वही पंच लोग न्याय देने बैठे। अलगू चौधरी से पूछा गया, अलगू, आप अपना पंच किसे मानते हैं? शंभू साहू ही चुन ले। नमस्ते सभी को, मैं अपना पंच जुम्मन शेख को मानता हूँ। अब तो अलगू चौधरी सोचने लगा कि जुम्मन शेख उसका पुराना दुश्मन उसके पक्ष में न्याय कभी नहीं देगा। जुम्मन शेख इस बात पर उछल पड़ा कि अब तो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का वक्त आया। निश्चय ही अलगू चौधरी से बदला लूँगा। परंतु पंच के पद पर बैठते ही जुम्मन शेख की आत्मा से ऐसा न्याय निकला कि सब लोग दंग रह गए। जुम्मन ने सभी बातों को भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय दिया कि बैल की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उससे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया था और उसके दाने चाने का प्रबंध बिल्कुल नहीं किया। आखिरकार जुम्मन शेख, जो उस वक्त पंच था, उसने यह निर्णय दिया कि शंभू साहू को बैलों की उचित कीमत देनी ही होगी। तब जुम्मन शेख को यह महसूस हुआ कि वास्तव में पंच के मुख से जो भी वाणी निकलती है वह स्वयं परमेश्वर के मुख से निकलती है, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया हूँ। मगर आज पंच के पद पर बैठकर मुझे ये एहसास हुआ कि पंच न किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। पंच के मुंह से निकली हुई आवाज खुदा की होती है, उसे न्याय के सिवा और कुछ समझ नहीं आता। पंच परमेश्वर होता है। इस बात पर तो अलगू रोने लगे और इन आंसुओं के पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। और फिर सभी साथ में कहते हैं कि परमेश्वर की जय, परमेश्वर की जय हो। पंच परमेश्वर की जय, परमेश्वर की जय हो। फैसले के कुछ ही दिनों बाद होली का त्यौहार था। जो भी दुश्मनी दोनों मित्रों के बीच में थी वह दोस्ती में बदल गई और इसे देखकर संपूर्ण गांव वासियों ने हर्षो उल्लास के साथ होली का महापर्व मनाया।
मेरी होली है।